Pranam and welcome to Vishanti Darshan, a channel devoted to produce videos on peace, spirituality and science. Today I have a very special guest in my studio, but before I introduce him to you, I need to give you a little brief of today's program, about the program which we are going to record today. Recently, former President Barack Obama was asked by progressive podcaster Brian Tyler Cohen about the existence of extraterrestrial life or ET or aliens. The former president responded, and I quote him. What he said? "They are real, but I haven't seen them. They are not being kept at Area 51 in US. There is no underground facility unless there is this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States." Unquote. The interviewer did not ask a follow-up question on the topic, but that opened up a Pandora's box worldwide. I too joined the bandwagon and decided to write a script for live history documentary on the existence of aliens or extraterrestrials. But then I was looking for some learned professor who could vet my script and help me complete my project. And then I thought of Professor Priyankar Upadhyay. Namaskar, young friends. This is Professor Priyankar Upadhyay, holder of UNESCO Chair for Peace at Banaras Hindu University, and currently serving as the distinguished professor and senior advisor to MIT World Peace University. In September 2016, he presented a religious and interfaith dialogue in Washington, D.C., convened by the US Department of Education at the invitation of President Barack Obama. With these opening remarks, I welcome Professor Priyankar Upadhyay in the studios of Vishanti Darshan channel. तो सर, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट लिखी है, जैसा कि अभी आपने देखा है सब। जी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप जहाँ एक्चुअली वेट करें, वर्ड तो वेट का है, जहाँ आपको लगता है कि ये ठीक है या गलत है, जो भी है, क्योंकि आजकल चर्चा हो रही है, तो ओपन होता है सर विजुअल्स में मोन्टाज ऑफ डीप स्पेस इमेजेस फ्रॉम द जेम्स वेब टेलीस्कोप कटिंग क्विकली टू एंशिएंट इंडियन टेम्पल कार्विंग. It is the ultimate question whispered in the halls of academia and shouted at UFO conventions. It is the ultimate question whispered in the halls of academia and shouted at UFO conventions. Are we alone? For decades, the answer has been relegated to the realms of science fiction and conspiracy theorists. But what happens when that question is posed to the leader of the free world? Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. In February 2026, former President Barack Obama sent shockwaves around the globe. In a podcast interview, when asked directly, he confirmed the existence of extraterrestrials. He later clarified, citing the statistical probability of life in a vast universe. But the damage or the wonder was done. This isn't just a modern story of Area 51 and government cover-ups. It is an ancient story. In this video, we embark on a journey to investigate a radical idea. What if the gods our ancestors worshipped, the flying machines described in our oldest texts, and the very creation of humanity were not miracles or myths, but encounters with beings from other worlds? We will probe the Indian scriptures, the Sumerian tablets, and global mythologies to ask, did ancient astronauts really visit us? तो ये जो थोड़ा लिखा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कितना सही है, कितना गलत है ये? मुकेश जी, ये जो पूरा रेल्म है एलियन का, जी, तो ये कई तरह के जैसे कहते हैं ना कि लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग इसमें होनी चाहिए. हाँ. एक तो भाषा का प्रश्न है. हाँ. जिन्हें वो एलियन समझते हैं या जिन्हें हम एलियन समझते हैं, उसका एक विशिष्ट अर्थ है. एलियन का अर्थ हम समझते हैं कोई चीज़ जो हमसे अलग हो, किसी दूसरे नक्षत्र से आई हो. ज़्यादातर यही सोच होती है, किसी दूसरे ग्रह से आई हो, या किसी को हम महसूस नहीं कर पाए हैं. अब उसमें सांस्कृतिक रूप से बहुत सी चीज़ें शुमार होती हैं, जैसे हमारे यहाँ भूत प्रेत, दान दिन, यू नो, पीपल दैट वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट, जो वेरी फेबल ना हो. अब इसमें इसको अगर हिंदी रूपांतर करें और हम मिस्र की संस्कृति में ले जाएं या भारतीय परंपरा में ले जाएं या चाइनीज़ में ले जाएं, तो कुछ बात बनती नहीं है. मोटा मोटी बात यह है, इसमें दो तरह की डिबेट्स इमर्ज करती हैं. एक तो डिबेट इमर्ज करती है कि क्या ये एलियंस होते हैं, नहीं होते हैं. और जो दूसरी चीज़ वो मेरे दिमाग में अभी आ रही है, तो तुरंत की तुरंत ताज़ा के ताज़ा, वो ये आ रही है कि इस पर इतना
लोगों में इतनी रुचि क्यों है। ये आप देखिए कि इसमें एक दो नहीं, दर्जनों बड़ी सफल फिल्म बन चुकी हैं, अच्छे खराब एलियन के नाम पे ये फिल्में हैं। भारत में भी आप देखिए, बॉलीवुड देखिए, तो उसमें कम से कम आपको हर साल 15 रिलीज मिलेंगी जो एलियन की होती है, लेकिन अधिकांश एलियन भूत प्रेत और किस्से चुड़ैल के होते हैं, अलग अलग संदर्भों में। तो एक ही सवाल हमारे जहन में भी आया अभी जी जी कि भाई देखिए, ये बराक ओबामा बहुत सी चीज़ें बोलते हैं और बहुत ही संवेदनशील आदमी हो। मुझे इत्तेफाक रहा कि उनका मैं उनसे थोड़ा बहुत बातचीत भी हुई। उन्होंने एक छोटी सी चीज़ प्रकारांत से कही, इन पासिंग कही, और उसको लेके एक मुद्दा उछल गया। तो मुझे मन में हंसी आ रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि यूक्रेन चल रहा है, गजा चल रहा है, AI चल रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ तो टेलीविज़न पे रात दिन चौ चल रही है, लेकिन वो सबको सरपास करके एक विषय बन गया। तो देखिए, ये एक, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको कहीं ला सकते हैं आप अपनी स्क्रिप्ट में कि कहीं पर ये दो चीज़ों से रिलेट करता है। एक तो मनुष्य की जो फियर ऑफ अननोन है, जिसको कि हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, लेकिन यहाँ तक लोग गए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो क्या, जो सोशियोलॉजिस्ट, एक सीमा तक कि धर्म का भी जो प्रादुर्भाव हुआ वो इसी से हुआ कि जो एलियन है, सूर्य निकला आपको पता नहीं था, हवाएं चली आपको पता नहीं था। इसी पे बड़ी कहानियां हैं, एज यू नो, सारे देश विदेश में और संस्कृतियों में उनको हमने देवता मान लिया। आई मीन दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो एक चीज़ तो ये है जो फियर ऑफ अननोन की। जो दूसरी चीज़ है उसको इस तरह से आप ला सकते हैं इसमें कि जो सारा ज्ञान विज्ञान और मीडिया, और आपसे ज़्यादा कौन मीडिया का वाकिफ़ है, वो कंस्ट्रक्शन होता है और उसको इम्पोर्टेंट जो कम्युनिटीज़ होती हैं या जो शक्तियाँ होती हैं वो उसको अनुप्राणित करती हैं। इस केस में आप देखिए कि इट सुपरसीड्स एवरीथिंग, ये एक डाइवर्शन होता है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जी। तो इसका मैंने एक्ट रखा था द विमान्स एंड द गॉड्स ऑफ इंडिया। स्वीपिंग एरियल शॉट्स ऑफ इंडियन लैंडस्केप, जूमिंग इनटू कार्विंग ऑफ टेम्पल्स, एलोरा केव्स, फोकस ऑन फिगर दैट अपीयर्स टू होल्ड वेपन्स और ऑब्जेक्ट दैट लुक टेक्नोलॉजिकल। ऐसे कुछ शॉट्स आपके सामने ला के रख रहा हूँ। और नरेटर यहाँ कह रहा है कि India, a land where history and mythology are so deeply intertwined that they are often indistinguishable. Here, in the Sanskrit epics, we find descriptions of technology that by all accounts should not exist. In the Vedas, the Purans and the great Itihas, the Ramayana and the Mahabharata, we don't just find gods, we find cities in the sky, devastating weapons and flying machines. These are the Vimans. The Ramayana describes the Pushpak Viman of the demon king Ravan as an aerial chariot that could fly anywhere at will. The Mahabharata describes them as being powered by a strange white liquid and capable of unleashing destruction so complete that scholars have compared it to a nuclear blast. We are not talking about simple chariots pulled by horses. The texts are technical. They speak of iron birds, of ships that could fly in the air and even into space. The Samarangana Sutradhar, an 11th century text, describes an entire chapter to the construction of these Vimans, detailing their ability to absorb solar energy and their durability. The Vaimanic Shastra, a 20th century revelation of an ancient 4th century BC text, goes even further. It lays out plans for mercury vortex engines and heat absorbing metals. Mainstream science dismisses it as impossible, but it forces a probing question. इस पर मैं जरा जानना चाहूँगा कि विमान के ऊपर, इसके ऊपर बेसिकली क्या है थॉट आपका, कि कुछ ऐसी चीज़ जैसा कि अभी आपने बताया। देखिए, अब ये बड़ी एक ये कहानी, हाँ, ये एक बड़ी, एक तरह से देखा है तो बड़ी उथली बहस है। अच्छा। और दूसरी तरफ देखिए तो इससे गंभीर विषय नहीं हो सकता कि क्या हम जो देख पाते हैं, है ना, जिस चीज़ को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, और उसको हम कहते हैं कि साइंस की जो आधुनिक परिभाषा है उसने भी यही सिखाया कि थिंग्स विच कैन नॉट बी एविडेंस्ड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है, मगर इसकी भी सीमाएं होती हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद ऐसी चीज़ें थी, और शायद ये इमेजिनेशन थे, मगर शर्मा जी हमें भूलना नहीं चाहिए, जो इमेजिनेशन होता है बाद में जाके वही एक रियलिटी के रूप में आता है।
इसमें एक सवाल जो उभर के बार बार आता है कि ये जो इमेजिनेशंस थे, क्योंकि इमेजिनेशंस तो थे जी, प्लेग के जो स्प्रेड करने वाले थे, बैक्टीरिया थे, उसकी खोज नहीं हुई थी। वो मनुष्य के पाप से होती है और उसके लिए पूजा करनी चाहिए। तो उस वक्त उनको नहीं पता था। तो साइंस का जैसे जैसे प्रोग्रेशन होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं और बहुत सी चीज़ें उसमें जिसको हम इमेजिनेशन समझते हैं वो उस रूप में आती हैं। अगर आप दर्शन देखें तो हमने एलियन के कंसेप्ट को उस रूप में ज़्यादातर स्वीकार ही नहीं किया। हमारे लिए क्या था, वही जो कोहम और सोहम की बात थी कि हमारा जो सोहम है, सोहम है, उसमें सभी कुछ अंगीकृत है। जैसे कि हम प्लानिटरी बातें करते हैं। अब शांति की भी अथर्ववेद में परिभाषा आई, तो क्या आई कि भाई अंतरिक्ष शांति, वृक्ष शांति। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमने वो प्लानिटरी, हमें और पूरे प्लेनेट में कोई विभेद हमने नहीं रखा, एका बना लिया। अब जैसे एक सप्तलोक का एक कंसेप्ट आता है, 14 लोक का आता है। हाँ। तो जिन चीज़ों को हम अपने ज्ञान से नहीं उस वक्त समझ पाते हैं, उनको हम लोग सोचते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए हमको विशेष अंतर्दृष्टि चाहिए। अब जैसे देखिए, हम लोग तो MIT में देखते हैं, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी हैं, और किस तरह से उन्होंने एक झंडा अपना बुलंद कर रखा है कि ध्यानेश्वर जी को, हमारे ध्यानेश्वर जी महाराज को, उन्होंने कहा कि इनको आप टॉप साइंटिस्ट की तरह रखिए, टॉप फिलोसोफर की तरह रखिए, और जो विज्ञान और स्पिरिचुअलिज्म का और जो अध्यात्म का समन्वय है, उसको करके ही आप कहीं पहुंचेंगे। हम पूरे विश्व को अंगीकार करते हैं, हम एक लोक नहीं मानते हैं कि जो दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे सामने है, हम उसको स्वीकार करें। हमारे लिए हम भूत को, उन चीज़ों को भी स्वीकार करते हैं विच कैन नॉट बी वेरीफाइड, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको तपह चाहिए, तपस्या चाहिए, निग्रह चाहिए, योग चाहिए, मनन चाहिए। तो हमारे यहाँ की जो दृष्टि रही, उसको अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा शब्द आता है प्लानिटरी, जो होता है पूरे हम प्लेनेट को। तो आई एम नॉट कन्फाइंड टू दैट, वी आर नॉट कन्फाइंड टू दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस विच सेज दैट व्हाट इज नॉट वेरीफाइबल इज नॉट ट्रूथ। ट्रूथ को हम मानते हैं, इट इज़ बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ रियलिटी। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ इसी में, और संत तुकाराम जी की एक बात करता हूँ। Is the story of Sant Tukaram.